Hello friends, myself Rasika Pagaria from Aram College. In last lecture, we were studying about the causes of World War II. First was the Treaty of Versailles, second was the failure of the League of Nations, third was the problem of minorities, fourth, failure of disarmament efforts, fifth, aggressive nationalism, sixth, rise of dictator, seventh, policy of appeasement, right? Then we started with the seventh. No, we started with the कौन से पॉइंट से स्टार्ट किया था? हाँ, वी स्टार्टेड विद द राइज ऑफ डिक्टेटर. ऑल कंट्रीज़ क्या है, सब कंट्रीज़ में वॉर की वजह से बहुत से प्रॉब्लम है, लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, फूड शॉर्टेज एंड इन्फ्लेशन. हाँ, तो देयर वाज अ डिप्रेशन ऑफ 1929. सो वो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई. सो क्या है उस वक्त, क्या है, इटली, मुसोलिनी केम अप टू पावर विथ प्रॉमिस टू सेट थिंग्स राइट. In Russia, Stalin started 5-year plans by which the people gained economic development at the cost of their personal liberty. Out of the civil war in Spain, General Franco emerged as dictator. In East, the military agreement supported the Japanese emperor. The political scene was fast changing, and it is no small wonder that Germans do embrace an ambitious dictator. This dictatorship used violence at home and had no problem using it abroad. It was a prime means of securing and strengthening their hold on these people. This dictatorship were military aggressive. Then policy of appeasement. European affairs between March 1938 and April 1939 were dominated by the full-scale implementation of Napoleon's Chamberlain policy of appeasement. This policy was based on number of consideration. ब्रिटेन एंड फ्रांस डिड नॉट एग्री ऑन एनी इशू. फ्रांस को क्या चाहिए था? जर्मन पूरी तरह से इकोनॉमिकली कोलैप्स्ड हो जाए. ब्रिटेन नहीं चाहता था ऐसा. क्यों? ब्रिटेन को, ब्रिटिशर्स को बहुत सी इकोनॉमिक रिकवरी जर्मन के ऊपर डिपेंड थी, क्योंकि अगर जर्मन इकोनॉमिकली रिकवर हुआ तभी ब्रिटिशर्स को भी कुछ फ़ायदा होगा. The most significant base of this policy was the fear of communism. This policy also retested a careful calculation of balance of power. Right? This policy was also based on their internal weakness. British Prime Minister Neville Chamberlain believed that if the policy of appeasement would ever avert a war, or at least delay it longer enough for Britain and France to be ready for war. Finally, British did not really understand the new generation of dictator. Then Hitler's foreign policy. Hitler first turned his attention to Austria. क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रिया में बहुत से जर्मन लोग रहते थे. राइट. देन ही एनकरेज्ड नाजी एजिटेशन विद इन ऑस्ट्रिया. सॉरी, where Hitler sent German armies into Austria and brought about as well as union with German. Then the Nazi dictator then turned his attention to Sudetenland, where a large number of Germans were living. He accused the Swiss government of opposing the German minority. Then Hitler was not satisfied and said that he would help the students. British and France were very concerned with this development, and in September 1938, together with Italy, they signed the Mutual Pact. Hitler was permitted to annex Sudetenland on condition that in future he did not want more territories. This policy of appeasement exposed the weakness of Britain and France. Hitler ने इसी का फ़ायदा उठाया and is acquired more and more territory. Then immediate cause of war. Hitler's plan involved Poland. He demanded that Tangies be returned to German and the Polish corridor as well. Then France and Poland and three powers agreed to guarantee one another independence and territorial integrity. Hitler moved swiftly and signed non-aggression pact with Russia for 10 years. On 1st September, German troops invaded Poland without any declaration of war. On 3rd September, Britain and France declared war on German. इस तरह से क्या हुआ? World War II धीरे धीरे चालू हो गया. Now we'll start with the consequence of the World War. The Second World War
like the first, what economic, social and political changes. See, the second world war क्या है, like first के जैसे क्या हुआ, बहुत से economic, political and social changes हुए. In 1945, the most drastic economic and social changes came in Central and Eastern Europe, and where many countries underwent a complete economic reorganization under communist control. See, in film in 1945 क्या हो गया, there took a drastic economic and social changes came in Central and Eastern Europe. और क्या है, बहुत से वेस्टर्न कंट्री एंड बहुत से कंट्रीज क्या है, उनका बहुत सा इकोनॉमिक रीऑर्गेनाइज हो गया अंडर कम्युनिस्ट कंट्रोल. द ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल अपील्स केम इन द एस्थेटिक कंट्रीज ऑफ चाइना, इंडिया, बर्मा, मलाया एंड इंडोनेशिया. सी, पॉलिटिकल्स पूरा पॉलिटिकल कंडीशन पूरी चेंज कहाँ हुई सबसे ज़्यादा, it came in Asian countries of China, India, Burma, Malaya and Indonesia. World War II produced catastrophic result unparalleled in the history of mankind. See, World War II से क्या हुआ, बहुत ज़्यादा खराब हुई हालत, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव था. उसके अंदर का फर्स्ट पॉइंट, millions of people died. During the first year क्या हुआ, during the 5 year and 10 months of war, it was estimated that 12 million soldiers were killed in action. See, World War II कितने साल तक चला, 5 साल 10 महीने, ऑलमोस्ट 6 साल पकड़ लो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सिंपल देखा जाए तो. सो 5 years and 10 months of war क्या है कि बाबा उतने में कितने लोग मरे, 12 million soldiers were killed in action, right? Another 25 millions died due to starvation and diseases. और 25 million people क्यों मरे, भूख के कारण, बीमारियों के कारण. उस वक्त क्या है, बहुत सी बीमारियां रहती थी, प्लेग वगैरह सब बहुत बीमारियां रहती थी, और उसके ऊपर कोई इलाज नहीं था, कोई मेडिसिन नहीं थी, कुछ भी नहीं थी. इनफैक्ट डायग्नोस करना भी मुश्किल था, मतलब इतना ख़राब हालत था, राइट. तो क्या है, लोग उस वक्त स्टारवेशन और बीमारियों के कारण भी बहुत से लोग मरे. मतलब वॉर में 12 मिलियन सोल्जर्स वर किल्ड, और उसके बाद स्टारवेशन एंड डिजीज में 25 million people died. About 1,60,000 people died in Japan because of the atom bomb. See, हिरोशिमा और नागासाकी पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, तो उस बॉम्ब ब्लास्ट में जापान में कितने लोग मरे थे, 1,60,000 people died. Even today, the children of those who survived the Holocaust suffer from skin diseases and cancer. See, मैंने थोड़ी देर पहले किसी लेक्चर में बोला था, कुछ दिन पहले लेक्चर में बोला था ना, जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था जापान में हिरोशिमा और नागासाकी में, राइट, उसके कॉज एंड इफ़ेक्ट आपको आज भी जापान में देखने को मिलते हैं. देखो वहाँ पे लोगों को है ना, आज भी जिन लोग उनके बच्चों को बहुत से स्किन डिजीज़ वगैरह होती है, हाँ, कैंसर वगैरह होता है. इट इज़ नथिंग, इट इज़ अ जस्ट साइड इफेक्ट ऑफ दैट बॉम्ब ब्लास्टिंग. द नंबर्स विल नेवर बी एक्यूरेट, बट this time women and children figured very high on the death roll. See, ये नंबर्स वो एक्यूरेट नंबर्स नहीं बोल रहे, इट इज़ एस्टिमेटेड नंबर्स, लाइक अंदाज इतने तो पक्का रहेंगे, अब इससे और कितने ज़्यादा रहेंगे इसकी गारंटी तो किसी को भी नहीं है, राइट. और उस वक्त वुमेन और बच्चे तो बहुत ज़्यादा मरे थे, उनका डेथ रेट तो बहुत ज़्यादा है. स्पेंड नियरली $1 billion. The USA spent nearly $350 billion. अरे जब ये वॉर चल रहा था ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, अपने यहाँ पे तो ब्रिटिशर्स का राज चल रहा था, तो इंडिया के सोल्जर्स सारे, इंडिया से सारे सोल्जर्स वॉर के लिए जाते थे, कितने तो रिटर्न आए नहीं. और फिर वो वॉर के लिए, वॉर में जो लोग गए उनको खाना पीना सब कौन कहाँ से जाता था, सब इंडिया से जाता था ब्रिटिशर्स को, राइट. ब्रिटिश स्टार्टेड डिमांडिंग मोर एंड मोर फ्रॉम इंडियंस कि लाइक तुम वॉर में हमको हेल्प करो, हम तुम्हारा कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे, भला करेंगे, यू गिव अस फूड ग्रेन, कपड़े वगैरह सब है ना, इंडियंस को फोर्स किया जाता था देने को. फिर एक स्टेज ऐसा आया, इंडियंस बोलते कि भाई हम क्यों वॉर में आपकी मदद करें, राइट, वाई वी शुड फाइट वॉर,
ना हमारा कुछ लेना देना, कुछ नहीं, हमारे कंट्री को तो कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो ऐसे भी उस वक्त बहुत कुछ हुआ था। और वॉर के लिए जो भी पैसा लगता था ना, ब्रिटिशर्स लोग वो सारा पैसा इंडिया से ही लेके जाते थे। सो द यूएसए स्पेंड्स नियरली $350 बिलियन। कितना यूएस ने स्पेंड किया? $350 बिलियन। और बाप रे, द अदर कंट्रीज मे हैव स्पेंड समथिंग लाइक $1 ट्रिलियन। बाप रे, बाकी सब कंट्रीज ने कम से कम $1 ट्रिलियन से तो गंवाया ही होगा। इन टर्म्स ऑफ डैमेज द कॉस्ट वॉज अनदर $1 ट्रिलियन। और बाप रे, और डैमेज तो $1 ट्रिलियन। वॉर पे $1 बिलियन गया, $1 ट्रिलियन गए, राइट। और जो डैमेज हुआ वो कितना है? वो भी $1 ट्रिलियन है। यूरोपियन फाउंड इटसेल्फ एट द एंड ऑफ द वॉर, यूरोपियन फाउंड इटसेल्फ कम्प्लीटली रूइंड। सी, एंड ऑफ द वॉर क्या हुआ? जब वॉर ख़त्म हुआ तो यूरोपियन ने क्या देखा? वो कम्प्लीटली रूइंड हो चुके हैं। यूरोप के पास अभी कुछ भी नहीं बचा था, राइट। दे वर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, रूइंड। ऑलमोस्ट एवरी यूरोपियन स्टेट हैड विटनेस्ड हैवी बॉम्बिंग। सी, यूरोपियन का हर स्टेट पे बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया है। इंडस्ट्रीज वर डिस्ट्रॉयड, पोर्ट, रेलवेज, ब्रिजेस वर डिस्ट्रॉयड एंड सिविलियंस होम्स एज वेल। सी, वॉर की वजह से क्या हुआ? इंडस्ट्रीज पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। अभी वॉर करते करते आप कौन सी एरिया में जाओगे, कहाँ से कौन अटैक करेगा, कुछ इसका अंदाज़ रहता है क्या? इतना ही रहता है कि हमको वॉर जीतना है, यही रहता है ना अपना टारगेट। इस वॉर के चक्कर में अब ऑलमोस्ट 6 साल ये वॉर चला। 6 साल में क्या होगा? इकोनॉमी पूरी रूइंड हो जाएगी ना वॉर करते करते। इकोनॉमी के साथ साथ इंडस्ट्री सारी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, पोर्ट, रेलवे, ब्रिजेस सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, लोगों के घर पूरे उजड़ जाएंगे। अपने यहाँ पे एक बाढ़ क्या आती है इंडिया में, जिस एरिया में, जिस स्टेट में या जिस डिस्ट्रिक्ट में बाढ़ आती है सब कुछ नष्ट हो जाता है। जैसे रिसेंट एग्जांपल सांगली में 2 साल पहले जो बाढ़ आई थी सांगली कोल्हापुर में, इट वाज सो सडन कि पीपल डिडंट हैव टाइम टू वेक अप एंड सेव देयर लाइफ। कैसे तैसे लोग अपनी जान बचा के भागे, बट व्हेन दे रिटर्न कुछ भी नहीं था उनका वहाँ पे, राइट। बट इस बार क्या था? अब देख रहा है कि बाबा पानी बढ़ रहा है। व्हाट डिड दे मेड पीपल अवेयर ऑफ इट एंड दे शिफ्टेड पीपल। जो लोग शाणे थे ना, उन्होंने अपने दुकान का सारा सामान, घर का सामान सब कुछ शिफ्ट कर दिया था। और जो नहीं, रहने दे, जो होगा देखा जाएगा, ऐसे बोला ना जिन्होंने, वो सच में इस बाढ़ के चपेट में आ गए, राइट। उनके दुकान का सामान वामान सब हो चुका है। सी, माई मॉम्स प्लेस इज जस्ट नियर सांगली ओनली, सो आई नो ऑल दिस, लाइक एक्चुअल फैक्ट क्या थे क्या नहीं सब पता है मुझे। मतलब मेरे एक दूर के रिलेटिव है, लास्ट टाइम बाढ़ में तो उनका बहुत नुकसान हुआ था। उनका किराना स्टोर है। तो इस बार जब उनको बोला कि बाबा, उस वक्त जब गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दिया गवर्नमेंट ने कि बाबा बाढ़ आने की चांसेस है, फटाफट सब खाली करो, फटाफट सब शिफ्ट हो जाओ, तो उन्होंने अपनी दुकान का सारा सामान शिफ्ट कर दिया था। और वो खुद भी नीरज में रहने चले गए थे, राइट। तो दे वर एब्सोल्युटली फाइन, कोई टेंशन नहीं था उनको। तो क्या हो गया? वॉर की वजह से क्या है? इंडस्ट्रीज वर डिस्ट्रॉयड, पोर्ट्स, रेलवे, ब्रिजेस वर ऑल्सो डिस्ट्रॉयड। ओके, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डाउनवर्ड। द वॉर कॉस्ट सफरिंग टू मिलियंस ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। वॉर की वजह से क्या हुआ? बहुत से लोगों को सफ़र हुआ, मैनी पीपल सफ़र्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। एवरीथिंग वॉज इन शॉर्ट सप्लाई। सी, एवरीथिंग वॉज इन शॉर्ट, सब कुछ सप्लाई शॉर्ट हो गया। फूड स्टफ, केरोसिन, बिल्डिंग मटेरियल, क्योंकि किसी के पास कुछ पैसा बचा ही नहीं। अब मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं रॉ मटेरियल कहाँ से खरीदूँगी, राइट। मेरे पास रॉ मटेरियल नहीं है तो मेरे को घर बांधने के लिए सीमेंट विमेंट कहाँ से आएगा? तो क्या है यहाँ पे, क्या हुआ? देयर वॉज अ स्केर्सिटी of foodstuff, kerosene, building material, etc. Prices shoot up and the standard of living went right down. प्राइसेस क्या हुए? एकदम से बढ़ गए। जैसे अभी जब स्टार्टिंग में ये कोरोना वायरस आया था, कोविड आया था, तो सब्जियों के दाम क्या थे? भिंडी क्या थी? 150 रुपीज़ के जी थी स्टार्टिंग में, तो क्योंकि सब्जियां सिर्फ अति आवश्यक सेवा में सब्जियां भी मिलती थी, बट क्या है, वो भी लिमिटेड टाइम के लिए। तो लोग क्या है, हाँ कल जैसे सब्जियां लाने टूट पड़े, कल क्या होगा नहीं मालूम, घर में सब कुछ चाहिए खाना। तो क्या है, हर चीज़ का दाम कैसे शूट अप हो गया था, उस वक्त भी वैसे ही हो गया था। प्राइजेस
सब चीज़ के प्राइसेस एकदम शूट अप हो गए थे, इसलिए क्या हुआ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वेंट राइट डाउन. देन पॉलिटिकली इम्पैक्ट. एवरी कंट्री फाउंड इटसेल्फ बैंकरप्ट एंड दिस अफेक्टेड पॉलिटिकल लाइफ. सी, एवरी कंट्री क्या हुआ, उसने खुद को बैंकरप्ट सब हो गया एंड इट इफेक्टेड पॉलिटिकल लाइफ. यूरोपियन नेशंस केम टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशलिस्ट एंड लेफ्टिस्ट आइडिया. यूरोपियन नेशन क्या है, उन्होंने they were influenced by the socialist and left side ideas. Example, the Labour government came to power in British soon after the war. Example क्या है, ये जो लेबर गवर्नमेंट है that came into power in British soon after the war. Starting with the next point, horrified at the moral degeneration. The people of the world were horrified at the moral degeneration of all human men had committed the worst possible cruelty and aristocracy on other innocent human being. See, यहाँ पे क्या हो गया, the people of the world were horrified at the moral degeneration of all humanity. और क्या है, यहाँ पे लोगों का कंडीशन है ना बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो गया था. The Nazis had massacred millions of Jews in the most terrible way. से नाजिस ने क्या किया, जू लोग जो थे उनको बुरी तरह से ट्रीट किया और उनको लिटरली वो मार देता था. The dropping of the atom bomb on Hiroshima and Nagasaki proved that man was prepared to wipe out his own species. See, बॉम्बार्डिंग हुआ हिरोशिमा और नागासाकी पे, इससे क्या हो गया, पता चला कि आदमी ही आदमी को मारने पे तुला हुआ है. Acts like this showed the depth of moral degradation. See, ऐसे एक्ट से क्या पता चलता है कि इंसान कितना बुरा हो चुका है और कितनी बुरी तरह से एक दूसरे के साथ ट्रीट कर रहे हैं. Then 3 great Axis powers crushed. अभी 3 great Axis power कौन से थे, एक नाजी जर्मन, फासिस्ट इटली एंड मिलिटरिस्ट जापान वेर कम्प्लीटली क्रश्ड. राइट, नाजी था, हिटलर, मुसोलिनी और जापान में मिलिटरिस्ट, ये तीनों बुरी तरह से क्रश हो गए थे. जर्मन वॉज स्प्लिट इनटू 4 zones एंड ईच जोन वॉज पुट अंडर द कंट्रोल ऑफ यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस एंड सोवियत रशिया रिस्पेक्टिवली. सी, यहाँ पे जर्मन क्या हो गया, जर्मन में क्या, जर्मन के 4 टुकड़े हो गए. राइट, और एक एक टुकड़ा हर कंट्री को दे दिया गया था. लाइक यूएसए के पास एक जोन था, ब्रिटेन के पास एक जोन था, फ्रांस के पास एक जोन था, सोवियत रशिया के पास एक जोन था रिस्पेक्टिवली. द कैपिटल सिटी ऑफ बर्लिन वॉज ऑल्सो डिवाइडेड इन 4 zones. सी, ये कैपिटल सिटी ऑफ बर्लिन क्या है, इवन इट गॉट डिवाइडेड इनटू 4 zones. 3 zones were under foreign military control between 1945 and 1948. सी, बर्लिन के भी 4 zones हो गए और जिसके अंदर से क्या है, बहुत से जोन were under the foreign military control and it was between 1945 and 1948. Italy lost her all colonial possession. See, इटली का क्या है, इटली ने जो अपनी कॉलोनीज एस्टेब्लिश की थी, राइट, इटली की वो सारे कॉलोनियल वापस किसी ना किसी ने तो ले लिए. तो इटली की जो पोजीशन थी, वो जगह थी, अब वो नहीं रही. इटली हैड टू पैट अ वॉर इंटीमेटली एंड रशिया गॉट $100 million एज अ रिपार्टीशन फ्रॉम इटली. सी, इटली में क्या है, इटली ने वॉर किया बोल के क्या है, और वॉर में हार गई, इसलिए रशिया ने डिमांड किया इटली से कि यू विल बी पेइंग मी $100 million एंड ऑल, और इटली को वो $100 million पे करना पड़ा. शी कोलैप्स्ड इकोनॉमिकली एंड द मार्शल प्लान हेल्प हर टू रिकवर. तो इटली क्या हो गया, बुरी तरह से कोलैप्स हो गया और उनका मार्शल प्लान क्या, इट हेल्प हर टू रिकवर. जापान टू लॉस्ट हर एंटायर कॉलोनियल एम्पायर इंक्लूडिंग कोरिया, मंचूरिया एंड ताइवान. सी, जापान ने भी उसके जो कॉलोनीज उसने एस्टैब्लिश किए थे, राइट इन कोरिया, मंचूरिया एंड ताइवान, वो भी सारे नष्ट हो गए थे. द अलाइड फोर्स अंडर जनरल इसेक्नॉवर ऑफ द यूएसए ऑक्युपाइड हर. ये जो अलाइड फोर्स था,
was under General Eisenhower of the USA occupied her. Today, all these three countries under democratic government have staged an economic recovery. See, today all the three countries, ये जो तीन कंट्रीज हैं, इटली, जापान एंड द जर्मन, वो क्या हो गए? दे वर डेमोक्रेटिकली गवर्नड, हैव staged an economical recovery. Britain and France lost their position. World War II brought about changes in the position of the allied countries as well. See, World War II की वजह से क्या हुआ? बहुत से allied countries के क्या हो गए? पोजीशन चेंज हो गए. Britain and France lost their position as superpowers and gave up this position to USA and USSR. See, ब्रिटेन एंड फ्रांस ने क्या हुआ? दे लॉस देयर पोजीशन. सी, ब्रिटेन और फ्रांस क्या थे उस वक्त? है ना, टॉप पावर में गिने जाते थे. अब क्या हो गया? अब दे आर नो लॉन्गर कॉल्ड एज अ सुपर पावर एंड दे गेव अप देयर पोजीशन टू USA and USSR. After the war, Britain and France were faced with domestic and external problem. See, अभी सुपर पावर उनका निकल गया, उनका सुपर पावर जो था ब्रिटेन और फ्रांस का. तो अब क्या हो गया? वॉर के बाद क्या हो गया? ब्रिटेन एंड फ्रांस क्या है? दे फेस डोमेस्टिक एंड एक्सटर्नल प्रॉब्लम. ब्रिटेन और फ्रांस में बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक एंड एक्सटर्नल प्रॉब्लम होने लग गए. बोथ ऑफ देम कुड नो लॉन्गर होल्ड देयर रिस्पेक्टिव कॉलोनीज. अभी उनके इसमें ब्रिटेन और फ्रांस में ही इतने एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स आने लग गए उनको कि वो उनके जो कॉलोनीज उन्होंने एस्टैब्लिश की थी वो उनको कंट्रोल ही नहीं हो रही थी. अब वो कॉलोनीज पे कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे थे. क्या इकोनॉमिक्स पर ऑलमोस्ट बैंकरप्ट. उनके इकोनॉमी जो थी, उनके पास जो भी पैसा था एंड ऑल जो भी सब था, सब कुछ क्या हो गया था? बैंकरप्ट. नाउ द सुपर पावर कंट्रीज आर इकोनॉमिकली बैंकरप्टेड. राइज ऑफ USSR. One of the surprising result of the war was the rise of USSR as a superpower. One of the surprising result क्या था वॉर का? एक शॉकिंग सरप्राइजिंग रिजल्ट क्या था? एक तो USSR सुपर पावर बोल के आ गया. राइट, सुपर पावर क्या आ गया? USSR. शी वॉज पार्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफीट ऑफ जर्मन. और क्या है ये USSR जो सुपर पावर बोल के आई है? शी वॉज नॉट कम्प्लीटली बट शी वॉज पार्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफीट ऑफ जर्मन. द हीरोइज्म shown by her people at time of the war could hardly be forgotten. See, ये USSR जो सुपर पावर आई, ऐसी सुपर पावर हुई क्या? नहीं, उधर के जो लोग थे उन्होंने बहुत स्मार्टली वॉर किया. राइट, और उन्होंने डेडिकेटली वॉर में पार्टिसिपेट किया, बहुत अच्छे से कॉपरेट किया और उनकी वजह से दे केम अप एज अ सुपर पावर. और उनका ये डेडिकेशन है वो अपन भूल नहीं सकते. USA had a financial benefit. See, USA को क्या हुआ? USA had a financial benefit. क्या था? The USA played a pivotal role in winning the war. See, USA played very important role in winning the war. The USA had benefited financially in a tremendous way and her industrialists had made huge profit. See, USA को क्या है? फाइनेंशियली वॉर के चक्कर में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ और कंट्री को तो फ़ायदा हुआ ही हुआ, साथ में इंडस्ट्रीज़ को भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिला. एंड हर इंडस्ट्रियलिस्ट हैड मेड ह्यूज प्रॉफिट. ड्यूरिंग द वॉर द USA हैड लोन्ड मनी टू मैनी कंट्रीज. सी, जब वॉर चल रहा था तो USA ने क्या किया? बहुत से कंट्रीज़ को लोन पे पैसा दिया था. अब बहुत से कंट्रीज़ को लोन क्यों चाहिए था? वॉर की वजह से क्या हो गया था? बहुत सा इकोनॉमिकली दे वर नॉट स्टेबल और वॉर चल रहा है. वॉर तो करना ही पड़ेगा क्योंकि हर कंट्री को अपना इंडिपेंडेंस पे आ रहा था. तो उन्होंने USA से लोन लिया था, तो USA को इस लोन का बहुत फ़ायदा हुआ. आफ्टर द वॉर, सिंस हर फाइनेंशियल पोजिशन वॉज सिक्योर्ड, शी कंटिन्यू टू लोन मनी टू वॉर टोन कंट्री. सी, वॉर के बाद भी क्या था? USA का पोजीशन क्या था? बहुत अच्छा था. इंडस्ट्रीज सारे वहाँ पे अच्छे से चल रहे थे USA में, तो
जो वॉर की वजह से जिन कंट्री को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है उनको यूएसए ने बहुत से कंट्रीज़ को लोन दिया और वो स्टेबल रही. यूएसए वॉज फाइनेंशियली बेनिफिटेड एंड इट वॉज मच मोर स्टेबल से भी ऊपर बोला तो भी चलेगा. देन कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट ब्लॉक. दिस टू न्यू सुपर पावर यूएसए एंड यूएसएसआर represented totally different ideologies. See, these two new superpower USA and USSR क्या है? They represented totally different ideologies. USA represented the capitalist bloc and USSR represent the communist bloc. See, जो ये नए सुपर पावर आए हैं USA and USSR, दोनों के विचार क्या थे? Completely अलग थे. USA represented the capitalist bloc and the USSR represented the communist bloc. The Cold War between the two lasted from 1945 to 1989. अब USA और USSR में क्या था? कोल्ड वॉर चालू था and it was from 1945 to 1989. Then next point is the colonial revolution. The most far-reaching consequence of the war was the colonial revolution. See, the far-reaching consequences of the war क्या था? Was the colonial revolution. The people of the colonial empire of Britain, France and Holland revolted against the domination of white men. See, अभी जो लोग थे कॉलोनीज में लाइक ब्रिटिश, फ्रांस एंड होलैंड में, उन्होंने दे वेर डोमिनेटेड बाय द वाइट क्लास. मतलब ब्रिटिश लोग उनको डोमिनेट कर रहे थे और उनको इन ब्रिटिशर्स से छुटकारा चाहिए था. They were determined to have their freedom. अब इन लोगों को इन ब्रिटिशर्स से आज़ादी चाहिए थी. इंडिया, पाकिस्तान, बर्मा, साइलोन, इंडोनेशिया, इंडो चाइना, इजराइल, ईरान, साइरा, इथियोपिया, लिबिया and states in Africa all won their independence soon after the war. See, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या है? बहुत से कंट्रीज़ को आज़ादी मिली. कौन से कंट्रीज़ को आज़ादी मिली आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर? जैसे कि देखो, इंडिया, पाकिस्तान, बर्मा, साइलोन, इंडोनेशिया, इंडो चाइना, इजराइल, ईरान, साइरा, इथियोपिया, लिबिया and states in Africa all won their independence soon after the war. Now the last point was the UN was born. The United Nations Organization was born in 1945. कब UN आया था? UN was born in 1945. Although the League of Nations failed, mankind did not lose its hope of making the world a safer place. See, UN क्या है? लीग ऑफ नेशन क्या है? बुरी तरह से फेल हुआ था, राइट? लीग ऑफ नेशन फेल हुआ, इसीलिए तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ. देखो, लीग ऑफ नेशन फेल हुआ बट फिर भी हर इंसान को क्या चाहिए था? सब इंसान को क्या चाहिए था? पूरे वर्ल्ड में सब लोगों को क्या चाहिए था? पीस, सिक्योरिटी एंड द सेफर प्लेस टू लिव. इसलिए दे केम अप विद द UN, लाइक यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन केम अप and it was born in the 1945. The UN charter was signed at St. Francisco and it contains the hope that country can work together to maintain peace. See, UN charter कब साइन हुआ था? It was signed at St. Francisco. सेंट फ्रांसिस्को में ये साइन हुआ था और सारे कंट्रीज़ ने एक ही चीज़ चाही थी कि बाबा शांति बनी रहे, सब लोग मिलजुल के काम करें, अच्छे से रहे, मिलजुल के सब कुछ हो, राइट? एंड वी मेंटेन पीस. क्योंकि इतना वॉर की वजह से इतना डिस्ट्रक्टिव हो चुका था ना, सबका लाइफ, सब बैंकरप्ट हो गए थे इकोनॉमिकली, कोई स्टेबल नहीं था, इंडस्ट्रीज सब अनएम्प्लॉयमेंट, इतने प्रॉब्लम्स थे ना, तो सबको एक ही चीज़ चाहिए थी, वो है पीस एंड सिक्योरिटी. कोई भी कंट्री वॉर करने के सिचुएशन में वापस नहीं थी. सो लोगों ने क्या किया? दे केम अप विद द न्यू ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज द UN, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, राइट? इट वॉज फॉर्म्ड एट सेंट फ्रांसिस्को. विल वाइंड अप आवर टॉपिक हियर. In next lecture, we'll start with the World War II. Meanwhile, read the topic well. If you have any doubt,
you can mail me on my mail ID. My mail ID is rasika.pagaria@arahamedu.in. Thank you.